Yeah, very good morning, friends. Today, we will see relational data models of database management system. In previous, I have covered the use of data model as well as the various types of data models. I have already shared you the video of what data model, and today I'll cover once again what exactly is what data model. Myself, Mahesh Sanvi, working as professor and head Department of Computer Engineering. I hope you all will like this particular video and also subscribe my YouTube channel. Dear students, you must know data model is one of the very important concepts as far as your DBMS is concerned. And when we are talking about data models, we should define the data models like data models is what collection of tools describing mainly four things. One is data, another one is data relationship, then data semantics, and finally data constraints. So data model, the definition of data model, it is collection of tools for describing data, data relationship, data semantic, and data constraints. So we must know what exactly is data model. It is only a tool that will help you to describe data. Data means what information we like to carry, or what information we would like to collect from the application. Then data relationship, we can able to correlate one table with what another table. And today we will have hands-on experience of all this data relationship, data semantic, as well as what data constraints. And I'm sure that you all will definitely what enjoy today's session, because in today's session I will cover hands-on experience on MS Access, that is Microsoft Access, one of the relational data model, data relational DBMS heavily used in the market. And I hope you all can able to see this, the practical exposure for what exactly is data, how data relationship can be done, what is the meaning of data semantics, and how we can able to compose, or how we can able to impose various data constraints. This I have already cleared in my previous session, that data models has mainly two types: logical data model and physical data model. Here again, logical data model means what? It is logical view. We have already seen that physical level, logical level. So whatever which is happening at physical level is normally known as what? Physical data model. Now we'll see more on what logical data model. Logical data model again has two types: record-based logical data model and object-based logical data model. So when I'm talking about record-based, so here the base will be what? Record. So everything will be in the form of what? Record. And here when I'm talking about object-based logical record-based data model, it means that entire concern will be of what? Object. So everything will be based on what? Object. Today we will see what exactly is record, and you all are already aware, in case of object oriented programming language, the meaning of object is already clear to you all. So we will focus more on what today in relational data model, that is ultimately one of the type of what? Record based logical model. So record based logical model has three types: relational data model, hierarchical data model, and network data model. So here we will have a brief discussion about what relational data model first, and then we will go with what the hierarchical and network. But in today's session we will only focus on relational data model, and the learning objective of today's session will be what? You all will able to what? Understand what exactly is relational data model, and you all can able to implement entire relational data model today with the help of Microsoft Access, one of the modular tool available in the market. Regarding object-based data model, object-based data model has various types, but I have listed only two here, and that are ultimately what? Object-oriented, object-based data model, and ER data model, out of which ER data model is very, very famous and heavily used into what? Into industry nowadays. So from this, today we have to focus more on what? Relational data model, and into next series of sessions we will see all the types of what? Data models.
So let's focus on what exactly is relational data model. So you can observe here, I have given what the images here so that you will understand that this is ultimately one of the relation, this is second relation, this is third relation. Okay, and all relations are what ultimately connected with each other. This is ultimately shown the relationship between what two relations or two table. Here relation and table is one and the same concepts. So let's focus on what relational data model. Relational data model is ultimately all the data which is stored in the form of what relation, called as what table. So here actually the definition is given like this. In case of DBMS terminology, it is known as database. In case of RDBMS terminology, that is relational database management system, it is known as what? Relation. And in case of mathematical terminology, I have already told you that one of the subject prerequisite needed for this will be what? Your discrete mathematics. So based on that discrete mathematics, it is normally known as what? Table. So in mathematical terminology, it is known as what? Table. So let's focus on an example so that you will understand the relational data model. So relational data model is always in the form of what? Table, where you will get what? Columns as well as what? Rows. So data which is available into what? Column and rows. So what exactly is the terminology which is used here? So you will understand that there are two tables which are available here. One is this and another one is this. This table is also known as what? Relation. So please understand this terminology. Sometimes I may use table, sometimes I may use database, sometimes I may use what? Relation. All these three are what? Synonyms to each other. As far as database is concerned, it is known as what? Sorry, as far as DBMS is concerned, it is known as database. As far as RDBMS is concerned, it is known as relation. And in mathematical terminology, it is known as what? Table. लेकिन हमारे लिए ये तीनों के तीनों synonyms है. आप लोगों को याद रखना है. मैं जब भी टेबल के बारे में बोलूंगा, डेटाबेस के बारे में बोलूंगा या रिलेशनशिप के बारे में बोलूंगा, तीनों क्या है? सेम टर्मिनोलॉजी है. So relational data model is actually working based on what? These relations, or based on what? These tables. So here you should understand what exactly is this table. If you observe here in this particular example, relational data model, I was talking about relational data model. We need to understand what exactly is what importance of this relational data model. Relational data model is actually known as what? It is one of the famous record-based logical model. So you all should understand. And here, whatever discussion we have to make today, it is all about what? It is all about in the form of tables or relation. तो relational data model में जो भी कुछ आप लोगों को दिखाई देगा, वो सारा के सारा आपको ऐसे टेबल के फॉर्म में जो है वो दिखाई देगा. ओके, और हम लोगों को ये समझना है कि एग्जैक्टली टेबल के फॉर्म में क्या दिया गया है. सो वेरी फर्स्ट पार्ट, जो भी टेबल के नाम है, मींस कॉलम का जो भी हेडर है, डिपार्टमेंट नेम, उसके बाद बिल्डिंग और बजट, इसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कॉलम या फिर फील्ड या फिर एट्रीब्यूट. ये तीनों सिनोनिम्स है. जैसे टेबल को दो सिनोनिम है, टेबल या रिलेशन या फिर क्या? डेटाबेस. वैसे ही यहाँ पर एट्रीब्यूट या फील्ड या कॉलम, ऐसे तीन सिनोनिम्स है जिनको यहाँ पर बोला जाता है कॉलम का हेडर. ओके, कॉलम, फील्ड एंड एट्रीब्यूट. ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इसे हम लोग जो भी बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इसकी बात कर रहा हूँ. ओके, मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे? एक रिकॉर्ड, दैट इज कंप्यूटर साइंस टेलर एंड 1 लाख इज नॉर्मली नोन एज रो, रिकॉर्ड और टपल. तो मैथमेटिकल सेंस में टपल या फिर उसको एट्रीब्यूट बोला जाता है. टेबल के सेंस में कॉलम या रो बोला जाता है. डेटाबेस के या रिलेशन के सेंस में इसको फील्ड या रिकॉर्ड बोला जाता है. रो यानी ही रिकॉर्ड, टपल भी इसको एक्चुअली क्या किया जाता है? बोला जाता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू शुड अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी. अपार्ट फ्रॉम दिस, और एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, कॉलम के जो भी वैल्यूज होते हैं, ओनली वैल्यूज ऑफ कॉलम इज नॉर्मली नोन एज व्हाट? डोमेन. तो यहां पर आपको ये समझ में आएगा कि रिलेशन जो भी है ये एक्चुअली बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में बना है. रो दिखाई देगा, उसी को रो या रिकॉर्ड या टपल बोला जाता है, उसे हम लोग डोमेन बोल रहे हैं. ऊपर बेस्ड है,
तो ये है बेस्ड ऑन व्हाट, इट इज बेस्ड ऑन योर RDBM, इट इज बेस्ड ऑन योर रिलेशनल डेटा मॉडल। सो आज का जो भी टॉपिक हमारा था, प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली MS एक्सेस क्या है। ओके, इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपको यदि कोई इंडिविजुअल काम करना है या फिर आपको एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी आपका घर पे यदि आपका कोई शॉप है और आप शॉप के ओनर हो और एक सिंगल शॉप आपका है, तो उसके लिए यदि आपको कोई डेटाबेस चूज करना रहेगा, आप MS एक्सेस का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इट इज प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, माइक्रोसॉफ्ट। सो आप लोगों को डेफिनेटली इसका लाइसेंसिंग जो भी है वो माइक्रोसॉफ्ट से परचेस करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये एग्जांपल अभी अभी हम लोगों ने जो देखा है, इस एग्जांपल को हम लोग प्रैक्टिकली अभी क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे यूजिंग व्हाट, MS एक्सेस। ओके, सो मैं एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपका MS एक्सेस के साथ में क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। ये कंटेंट बियॉन्ड सिलेबस है, MS एक्सेस आपके सिलेबस इंक्लूड नहीं किया है स्टूडेंट्स। ये मैं यहाँ पर कंटेंट बियॉन्ड सिलेबस है, आपके सिलेबस की बाहर की चीज यहाँ पर आपके लिए क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल में आप लोगों को MySQL है और MongoDB है, मैं यहाँ पर आप लोगों को MS एक्सेस भी सिखा रहा हूँ, जिससे फास्ट वे में आप लोग किस तरीके से डेटाबेस क्रिएट करना है आप लोगों को आज आ जाएगा सभी लोगों को। तो डेटाबेस जो भी है, MS एक्सेस को ओपन करने के लिए जरूरी क्या है, MS एक्सेस से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक प्रोडक्ट है। जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके पास होगा, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्या कर सकते हैं, सिंपली ओपन कर सकते हैं। जिन लोगों के पास नहीं है, आप लोग सिंपली फोकस करें, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और उसमें सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है एक्सेस। ओके, मैं एक्सेस को यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। आई एम सिंपली ओपनिंग व्हाट, MS एक्सेस, दैट इज व्हाट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये आपको यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करने देगा। आज हम लोग डेटाबेस भी क्रिएट करेंगे और इसके साथ this particular thing. Okay, so let's focus on, it is simply it is getting installed। मैंने MS एक्सेस पर किए हैं और करीबन पिछले 10-12 साल से मैं MS एक्सेस को क्या कर रहा हूँ, काफी अच्छी तरीके से यूज कर रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको MS एक्सेस भी दिखाने वाला हूँ, आपको एक्सेल भी दिखाने वाला हूँ, जो कि हेवीली यूज टूल्स है सारे इंडस्ट्रीज में, और आप सभी लोग गारंटेड इसका काफी अच्छे से इफेक्टिवली क्या कर पाओगे, यूज कर पाओगे। काफी जो मीटिंग्स हमारे होते हैं, एल्यूमनी मीट या इंडस्ट्री के लोगों का जो भी मीट होता है, इंडस्ट्री के लोगों का जब भी मीट होता है, वो हमेशा फोकस करते हैं कि स्टूडेंट्स को आप लोग MS एक्सेस भी पढ़ाइए, स्टूडेंट्स को आप लोग एक्सेल भी पढ़ाइए। तो इसीलिए यहाँ पर DBMS में ये दोनों टूल हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको कंटेंट बियॉन्ड सिलेबस की तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप आज डेफिनेटली एंजॉय कर पाओगे कि क्या होता है exactly what MS access। Okay, actually talking about what this particular part, that is relational data model। तो मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए यहाँ पर मेरे सामने क्या है, MS access जो भी है वो ओपन किया है। होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। ओके, हाँ, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, और यहाँ पर आप लोगों को जो भी स्क्रीन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस जो भी है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये स्क्रीन कैसे आएगा डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको MS ऑफिस पूरा इंस्टॉल करना पड़ेगा। MS ऑफिस में आप लोगों को MS एक्सेस दिखाई देगा, और MS एक्सेस को क्लिक करने के बाद ये वाला स्क्रीन आपके सामने आएगा। यहाँ पर बहुत सारी बातें आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करना है, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक डेटा डेस्कटॉप डेटाबेस जो भी है इसका यूज करना है। तो मैं अभी इसको क्या कर रहा हूं, यहां पर ओपन कर रहा हूं। आई एम सिंपली ओपनिंग इट। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा, ओके, तो आपको यहां पर कुछ चीजें जो भी है दिखाई देगी डियर स्टूडेंट्स, कि यहां पर आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है। ओके, इस टेबल का नाम दिखाई दे रहा है, ओके, टेबल 1। तो मैं इसको राइट क्लिक कर रहा हूं। ओके, ये जो भी टेबल है ये पूरा MS एक्सेस का विंडो है, जहां पर आप लोगों को इस टेबल को राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये मुझे डिजाइन व्यू दिखाई दे रहा है, मैं इसको डिजाइन व्यू में ओपन कर रहा हूं। सो सिंपली ओपनिंग इन डिजाइन व्यू। टेबल का नाम मैं यहां पर दे देता हूं स्टूडेंट। ओके, और इसको मैं बोल देता हूं ओके। अब देखिए जैसे ही मैं स्टूडेंट को यहां पर ओपन कर रहा हूं, एक फील्ड रेडी होके आ रहा है, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। आई एम सिंपली रिमूविंग इट। मैंने इसको रिमूव किया, और हम लोग हमारे फील्ड्स लेते हैं, जैसे कि आपके पास आपका रोल नंबर होता है, तो वो मैंने यहां पर लिया है। ओके, आपको डेटा टाइप्स पता होने चाहिए कि कौन से डेटा टाइप यहां पर दिए हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पर नॉर्मली नंबर हमारा होता है, तो मैं नंबर ले रहा हूं। मैं डेटा टाइप के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आप सभी लोगों को डेटा टाइप के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। तो मैं यहाँ पर नंबर सिलेक्ट कर रहा हूं। उसके बाद मैं यहाँ पे नेम सिलेक्ट करूंगा। ओके, और मैंने नेम जो भी है उसको शॉर्ट
टेक्स्ट में ले लिया है। आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि जब भी मैं नेम को सिलेक्ट करता हूं, यहाँ पर उसके कुछ फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो भी फील्ड्स है डियर स्टूडेंट्स, ये 255 इसका लेंथ दिखाई दे रहा है, यानी कितना बड़ा नाम ये ले सकेगा 255। लेकिन हमें पता है कि 40 मेरा आज तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कभी कोई नाम 40 कैरेक्टर्स के ऊपर नहीं देखा है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ और इसको बोल देता हूँ एंटर। ओके, और हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट फील्ड के लिए। अब आपके मार्क्स में यहां पर ले लेता हूं। ओके, तो यहां पे मैं मार्क्स लेता हूं। ओके, और मार्क्स भी आपका यहां पर क्या रहेगा, नंबर रहेगा। मैंने उसको भी नंबर ले लिया है। उसके बाद मैं यहां पर आपका सिटी लेता हूं। ओके, तो ये मैं फील्ड ले रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। इसको क्या लिया है हम लोगों ने, फील्ड। और सिटी भी हमें पता है कि 20 मैक्सिमम लेंथ ऑफ सिटी इज व्हाट 20। तो मैं इसको यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा हूँ, 20 कर रहा हूँ। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे तो इसके यहाँ पे वेरियस एट्रीब्यूट्स आपको दिखाई देंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं 20, और मैं सिर्फ फील्ड साइज का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ और दूसरा कोई मैंने यूज नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने रोल नंबर लिया है, नेम लिया है, मार्क्स लिए है और सिटी लिए है। तो इसको नॉर्मली हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, तो मैं कोई भी एक हाथ जो भी नोटपैड ओपन कर रहा हूं, आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा कि मैं स्कीमा के बारे में आपको बता रहा था, डेटाबेस स्कीमा। तो डेटाबेस स्कीमा यानी क्या, या रिलेशनल स्कीमा यानी क्या, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट नाम का क्या बनाया, एक रिलेशन बनाया है। और उस स्टूडेंट नाम के रिलेशन में मैंने कितने फील्ड्स यहाँ पर दिए हैं, एक तो रोल नंबर मैंने दिया, दूसरा नेम दिया, ओके, दूसरा मैंने नेम दिया, तीसरा मैंने मार्क्स लिया है, और उसके बाद मैंने यहां पर लिया है उसका सिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इसमें से ये दिखाई देगा कि इसको हम लोग डेटाबेस स्कीमा बोलते हैं। डेटाबेस स्कीमा यानी क्या, ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटाबेस। तो ये जो भी डेटाबेस है दैट इज स्टूडेंट, इसका हम लोगों ने ओवरऑल डिजाइन कैसे किया, इसमें कितने फील्ड्स है उसका नाम दे दिया, रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंड सिटी। ऑलवेज रिमेंबर, डिजाइन में कभी भी आप लोगों को डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ती है। डेटा टाइप कहां पर आएगा, इंप्लीमेंटेशन में। तो डिजाइन में आपको इसकी जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो ये आप समझिए, यहाँ पर क्या आया है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंड सिटी। हम लोगों ने सिर्फ फील्ड के नाम यहाँ पर लिए हैं। इक्वल्स टू हम लोग टेबल का नाम लिख रहे हैं, इसे क्या बोला जाता है, रिलेशनल स्कीमा। तो यही हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है। ओके, तो ये डिजाइन आपका डेटाबेस का यहाँ है। अब मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। डिजाइन हम लोगों ने बनाया है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, क्लोज एंड से यस। जैसे ही मैंने इसको यस बोला है, आप देखिए यहां पर एक टेबल यानी क्या रिलेशन बन चुका है स्टूडेंट नाम का। मुझे यदि इसमें कोई फील्ड्स एंटर करने हैं, इसमें कोई डेटा डालना है, तो मैं इसको सिंपली क्या करूंगा, ओपन करूंगा। अब देखिए जब मैं इसको ओपन कर रहा हूं तो आपको यहाँ पर रोल नंबर, नेम, मार्क्स और सिटी दिखाई दे रहा है। ओके, और आप लोगों को मैंने बताया था कि सिस्टम स्ट्रक्चर का वीडियो जिन लोगों ने ठीक से देखा होगा, डेटा डिक्शनरी एक वर्ड वहां पर आया हुआ था। ओके, डेटा डिक्शनरी ये वर्ड वहां पर आया था। मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को ये सारी चीजें जो भी है वो दिखा रहा हूं कि किसे एक्चुअली डेटा डिक्शनरी बोला जाता है। डेटा डिक्शनरी यानी क्या, डेटा अबाउट डेटा, जिसी को हम उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा डेटा। ओके, डेटा अबाउट व्हाट, डेटा यानी क्या, ये क्या स्टोर करता है, डेटा डिक्शनरी इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट डेटा और मेटा डेटा। यानी अल्टीमेटली ये आपका क्या करता है, डेटाबेस में, डेटाबेस जो भी वर्ड है, ओके, डेटाबेस ये जो भी वर्ड है ये एक्चुअली दो फॉर्म में बटा गया है, एक डेटा और दूसरा क्या है, बेस। तो मैं फिलहाल इनको अलग अलग कर देता हूं। तो डेटा अलग है और बेस अलग है। बेस यानी क्या, बेस को यहां पर मैं लिख रहा हूं, बेस यानी क्या, स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, डेटाबेस। ओके, और ये स्ट्रक्चर जो भी होता है ये डेटा डिक्शनरी में क्या होता है, स्टोर होता है। तो ये आपको समझना जरूरी है। ओके, तो डेटाबेस एक्चुअली दो चीजों से बना है, डेटा और बेस। यानी डेटा कौन से बेस पर आप लोग स्टोर करोगे, कौन से फाउंडेशन पर आप स्टोर करोगे, वो यानी क्या, उसका स्ट्रक्चर। और वो स्ट्रक्चर कहां पर स्टोर होगा, डेटा डिक्शनरी में। तो जैसे ही फ्रेंड्स, जैसे आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे, यहां पर एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना दिया, दैट इज रोल नंबर, नेम, मार्क्स और सिटी। अब इसको डेटा अबाउट डेटा क्यों बोलते हैं, वो आपको समझना जरूरी है। डेटा अबाउट डेटा यानी क्या, ये रोल नंबर एक डेटा ही है जो आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे रोल नंबर आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे डेटा डाल रहा हूँ, देखिए 1। उसके बाद यहाँ पर मैं नाम देता हूँ MRS, या मैं यहाँ पे नाम देता हूँ ABC। उसके बाद मैं यहाँ पे मार्क्स दे देता हूँ 70। हमारे सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स इस साल बहुत अच्छे आए हैं, तो मैं कम से कम 70 यहाँ पर डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं नाम दे देता हूँ चंदवड। ओके, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मैंने डेटा डाला हुआ है 1 विथ रिस्पेक्ट टू रोल नंबर, ABC ये भी डेटा ही है विथ रिस्पेक्ट टू नेम। तो ये डेटा अबाउट डेटा, इसे हम लोग बोलते हैं। सो 1 इज डेटा फॉर डेटा लाइक रोल नंबर। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाला जो भी टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने यहाँ पर लिया है, डेटा अबाउट डेटा, दैट इज अल्टीमेटली दैट पार्ट।
ओके, नाउ इट इज टाइम फॉर अटेंडेंस। तो मैं सभी लोगों को अटेंडेंस के लिए क्या कर रहा हूं, एक फॉर्म जो है वो डाल रहा हूं आपके चैट विंडो के ऊपर। आप सभी लोग इस पर्टिकुलर जो भी फॉर्म है उस फॉर्म को आप लोग फिलअप कीजिए। ओके, आपको चैट विंडो के ऊपर मैंने फॉर्म दिया है। आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग यहाँ पर इस फॉर्म को ओपन करके आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका व्हाट्सएप नंबर, जो भी है उतना इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करना है। आज के लेक्चर के बारे में आपको जो भी कोई सजेशन, जो भी कुछ राय देनी है, या आपको यदि उसमें कुछ अच्छा लग रहा है तो वो सारी बातें आप वहां पर डाल सकते हैं और उसको स्टोर कर दीजिए। ये आप लोगों को रिक्वेस्ट है। ये फॉर्म जो भी है 1 मिनट के लिए आपके लिए ओपन किया है, आप वो देख सकते हैं। मैं 1 मिनट आप लोगों के लिए पॉज ले रहा हूं, क्योंकि आप लोग क्या कर सकते हैं, तब तक आपका फॉर्म जो भी है वो फिलअप कर सकते हैं। हेलो सर, वो फॉर्म ऑलरेडी फिल्ड बता रहा है। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay, form is not opening. Don't worry. I'm giving you one more option. Okay, to give you poll. फॉर्म नहीं हो रहा है तो पोल के ऊपर आप जाइए। पोल आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूं। मैंने पोल के बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन दिया था कि आपको यहां पर यह समझना जरूरी है कि प्राइमरी की क्या है। प्राइमरी की ये एक ऐसा फील्ड है कि जो आपको यूनिक वैल्यूज जो भी है वो हमेशा प्रोवाइड करेगा, और वो यूनिक वैल्यूज देगा। कोई भी नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। नल एग्जैक्टली क्या होता है ये मैं आपको आज प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा। ओके, मैं आपके सामने पोल लॉन्च कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, आई एम लॉन्चिंग द पोल। आई होप यू विल एंजॉय दिस पर्टिकुलर पोल। योर टाइम स्टार्टेड नाउ। आपके सामने दो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनल डेटा मॉडल हैज बेसिक डेटा स्ट्रक्चर नीडेड ईज। ओके, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आप लोगों को लगता है वो आपको वहां पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको प्राइमरी की के बारे में मैंने अभी कुछ बातें आपको बताई थी, तो प्राइमरी की के हिसाब से भी आप लोगों को सोचना है। लास्ट 5 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। Okay, so almost 59 students have opted for this. So just I'm ending this poll now and just see the outcome of this particular poll. I hope आपके सामने ये अभी जो भी पोल है उसके रिजल्ट्स में शेयर कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको समझ में आएगा कि रिलेशनल डेटा मॉडल, ये जो भी एक्चुअली मैं आपको यहां पर बता रहा था, रिलेशनल डेटा मॉडल हैज बेसिक डेटा स्ट्रक्चर। इसका राइट आंसर है टेबल। कुछ लोगों ने 5 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स एंड 1 स्टूडेंट्स हैव गिवन व्हाट रॉन्ग आंसर। कुछ लोगों ने ट्री बोला है, ग्राफ बोला है, और कुछ लोगों ने नन ऑफ द अबव बोला है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, रिलेशनल डेटा मॉडल के लिए आपको टेबल ये जरूरी है। टेबल यानी क्या, 2 डायमेंशनल एरे यहां पर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो राइट आंसर इज व्हाट, टेबल। और प्राइमरी की शुड बी व्हाट, इट शुड बी नॉट नल, non null, as well as what it should be, and it should be what, unique. So right answer is what, not null and unique. This is what the right answer. Many of you have already opted for what, this right answer. यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमेशा देखिए, मैंने इतने में ही थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को यहाँ पर क्या किया था, एक्सप्लेन किया था कि ये इसके क्या है, जवाब है। आई होप यू ऑल शुड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। सो लेट मी व्हाट स्टॉप दिस रिजल्ट्स, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन टुडे। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, द एमएस एक्सेस। ओके, तो एमएस एक्सेस के बारे में हम लोग अभी देखते हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि एमएस एक्सेस में हम लोगों ने डेटा डाला हुआ है एबीसी, और उसके बाद मार्क्स दिए है 40 और चांदवर्ड लिखा है। मैं फिर से यहाँ पर डेटा डाल रहा हूं 2, उसके बाद DEF, मार्क्स दे देता हूं 75, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूं नासिक। ओके, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है।
फिर से मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, और एक रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूं 3, उसका नाम मैं यहां पर दे देता हूं PQR। ओके, यहां पर मैं 80% उसको दे देता हूं, और यहां पर मैं नाम दे देता हूं लेट्स से पुणे। उसके बाद यहां पर मैं और एक स्टूडेंट लेता हूं, मैं फिर से रोल नंबर 1 देता हूं। यहां पर देखिए रोल नंबर 1 इसने एक्सेप्ट किया है। मैं फिर से इसका नाम दे देता हूं XYZ। फिर यहां पर मैं दे देता हूं 85। ओके डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई गेस आज का सेशन मेरा 10-20 तक ही है ना, तो मैं इतना ही आप लोगों को आज लूंगा, और उसके बाद मैं फिर से कल क्या करूंगा, MS एक्सेस के ऊपर हम लोग फिर से क्या करेंगे, फोकस करेंगे। यहां पर मैं यहां पे दे रहा हूं मुंबई। तो आप देखिए यहां पर एक गौर करने वाली बात आपको यह है कि 1 and 1 इसने रिडंडेंट क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। अब आप समझ सकते हैं कि डेटा रिडंडेंसी के बारे में मैंने आप सभी लोगों को बताया था। यदि डेटा इस तरीके से रिडंडेंट हुआ, काफी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। यदि 2 स्टूडेंट्स को सेम रोल नंबर मिल गए, तो आप समझ सकते हो कंफ्यूजन वहां पर क्या हो जाएगा, क्रिएट होगा। तो ये कंफ्यूजन यदि क्रिएट नहीं करना है, तो ऐसे वैल्यूज जो भी वो रिडंडेंट नहीं होने चाहिए। रिडंडेंसी का ड्रॉबैक हम लोगों ने किसमें देखा हुआ था, रिडंडेंसी का ड्रॉबैक हम लोगों ने आपका जो भी फाइल सिस्टम है उसमें, डेटाबेस में तो रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि इस रिडंडेंसी को करें